The objective of the SolidWorks Bootcamp is to provide the participants with the necessary skills and expertise to create complex designs and assemblies, as well as to prepare them for the SolidWorks certification exam. The purpose of the SolidWorks Bootcamp is to provide participants with a comprehensive overview of the SolidWorks software, its features and tools, and how to use them effectively in real-world application. The bootcamp also aims to enhance the problem-solving and critical thinking skills of the participants, as well as their ability to work in teams and communicate effectively. The SolidWorks Bootcamp is divided into several modules, each of which focuses on a specific aspect of SolidWorks. These modules include basics of CAD, 2D, 3D, surfacing, sheet metal and weldments, assembly, additive manufacturing, SolidWorks animation, automation, visualization, 3D scanning, and reverse engineering. Overall, the SolidWorks Bootcamp modules provide a comprehensive training program for those interested in learning SolidWorks from the basic to more advanced techniques and applications. The SolidWorks Bootcamp, we have added many international and national speakers. Let me introduce you to our honorable speakers. Mr. Deepak Gupta from India, Mr. Muhammad Al-Mushtaba from Sudan, Mr. Yahya T. Khidr from Egypt, Mr. Ali Saim from Pakistan, Mr. Ahmad Ijaz from Pakistan, and Mr. Ahmed Abdullah from Pakistan. Please welcome Ahmad Ijaz, a talented mechanical and design industrialist engineer and top-rated freelancer with over 4 years of experience in CAD design. Ahmad is a SolidWorks expert who has achieved 2 certifications and has been recognized by Dassault Systems for his excellent work. He's here to share his journey and experience. Following are some instructions that you need to follow. For physical participants without laptop, please proceed to CAD lab as soon as possible because limited PCs are available. And participants with laptop, please be seated in CR4. Virtual participants can turn their cameras on as per convenience. Please have your laptops ready. You should be sitting in a quiet and proper place and must have SolidWorks installed. The procedure for asking questions will be by raising your hands or by asking in the WhatsApp group. For further insights, I'll be handing over the stage to Ahmad Ijaz. Let's give a warm welcome to him. Assalamu alaikum everyone. Myself Ahmad Ijaz, as introduced by my earlier member. I'm here for the illustration and first workshop of SolidWorks, that is Introduction to Basics of CAD and Basics of 3D Modeling. This is our first workshop that is related to Introduction to Designing. This workshop will be included following categories. First of all, I will tell you about myself, and then we will go through the why CAD and importance of CAD. After that, we will go through the learning strategies and how you can improve your learning strategies for this course. At the end, we'll start our workshop, that is SolidWorks 2D. I will show you how its interface and basics of 2D. Myself, Ahmad Ijaz, I'm a student of mechanical engineering, 4th year at UT Dexla, and I'm working as a CAD designer from past more than 4 years, and also a top-rated freelancer in multiple platforms. Here are my contact informations. Okay, starting with why CAD. What's CAD? Originally, CAD was introduced for the engineers that are in the field of civil and mechanical design. सबसे पहले क्या होता था कि लोग
पहले कैड कैसे करते थे कि लाइक शीट्स के ऊपर डे बाय डे लगा के डेज लगा के उससे पेंसिल के ऊपर ड्रा करते थे चीज़ों को। तो देन फिर इसमें रेवोल्यूशन आई। उन्होंने क्या किया कि हमारी जो कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इन्होंने क्या किया कि जो पेपर के ऊपर हम ड्रा करते हैं चीज़ें उसको हमने इसके ऊपर ले आए सॉफ्टवेयर के ऊपर। उन्होंने क्या किया कि ये जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं हम जो 2D के ऊपर काम करते हैं वो 3D के ऊपर ले आए। स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ 2D के ऊपर काम हो रहा था, लाइक कंप्यूटर के ऊपर हो रहा था लेकिन 2D में। देन फिर उसमें रेवोल्यूशन आई। रेवोल्यूशन आने के साथ साथ उसको 3D में कन्वर्ट किया गया। और इसके अर्ली पेयोनियर्स जो हैं उनमें ऑटोकैड शामिल था। देन फिर इसमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज आती गई, उन्होंने एडवांस लेते गए, लाइक 3D में जाते गए और इसकी यूजर फ्रेंडली बना के और इसको एडवांसमेंट इसमें होती गई। और उसके अलावा हमारे पास इसमें फिर एडवांसमेंट इस तरह आई कि लाइक इसमें असेंबली आ गई, फिर एनिमेशन आ गई, फिर सिमुलेशन आ गई। ये चीज़ें इसमें एडवांसमेंट होती गई। उसके अलावा हमारे पास कैड के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमारे पास डिसॉल्व सिस्टम की एक कंपनी है, उनकी तरफ से सॉल्ववर्क्स है, फ्यूजन 360 है, ऑटोडेस्क इन्वेंटर है, कैटिया है। ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जो मोस्टली मार्केट में मैकेनिकल इंजीनियर्स यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। और एक चीज़ ये कि ये जो कैड है ये सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर्स तक लिमिटेड नहीं है। कैड सिविल वाले भी यूज़ करते हैं, मैकेनिकल वाले भी यूज़ करते हैं, आर्किटेक्चर वाले भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम इस कोर्स में ये स्टडी करेंगे कि मैकेनिकल में कैड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कैड कैसे यूज हो सकता है। और एज ए मैकेनिकल इंजीनियर कैड हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है जैसे एक लाइक पर्सन के लिए एक लैंग्वेज होती है। एक कैड डिजाइनर जो है, एक मैकेनिकल इंजीनियर जो है, कोई भी अपना आइडिया जो है उसका अपना आइडिया विद द हेल्प ऑफ कैड बेटरली उसको प्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लर्निंग स्ट्रेटजी। लर्निंग स्ट्रेटजी में ये है कि आप ये जो सर्कल के दरमियान में आपको एक ब्लैक डॉट नजर आ रहा है, ये आपकी करंट पोजीशन है। आपकी लर्निंग स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप स्टार्टिंग करें यहाँ से और अपने और ओरेंज सर्कल के अंदर अंदर रहें। ओरेंज सर्कल आपका शो कर रहा है कि आपने एक जितना आपने लर्न किया है उसके जो लर्निंग है उसके अबाउट आपने 3x स्टडी करना है। लाइक एक टॉपिक आपने स्टडी किया है उसके बारे में आपने 3x स्टडी करना है। और ये जो सर्कल के बाहर आपको नजर आ रहे हैं छोटे ब्लू डॉट्स में, लाइट ब्लू कलर में जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये आपकी सर्कल के बाहर है। लाइक एक टॉपिक आपने स्टडी कर लिया है उसके अलावा जो पॉइंट्स हैं ये आपने इस तरह स्टडी करना है। और 3x करने के साथ साथ आपने क्या करना है, बाकी ब्लू डॉट्स में आपकी जो फील्ड है, लाइक आपकी जो टॉपिक है उसे हट के स्टडी करनी है। आपने ये नहीं करना कि आपने ब्लैक डॉट अभी स्टडी किया है उसके अलावा आपने 3x कर भी लिया स्टडी, आप डायरेक्ट उस पर ये जो येलो डॉट है येलो डॉट के ऊपर चले जाएं। अगर इस तरह आप करेंगे तो आप अपनी फील्ड से हट जाएंगे। आप लाइक डिस्क्रीट फॉर्म में आपका डाटा होगा, आपको थोड़ा नॉलेज इस फील्ड का होगा, थोड़ा नॉलेज दूसरी फील्ड का होगा, लेकिन आप किसी एक फील्ड में ओरिएंटेड नहीं हो सकते। तो बेटर अप्रोच क्या है कि आप जितना आपने लर्न किया है उसको 3x स्टडी करें, देन उसकी बाहर वाली जो फील्ड्स हैं वो स्टडी करें। बाहर वाली जो ब्लू डॉट्स हैं इनको स्टडी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक अपनी जो फील्ड है वो ओरिएंटेड डिफाइन कर लेनी है। उसमें आप डिफाइन करके आप आगे जा सकते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बेसिक ऑफ कैड है, वो हम इधर सिखाएंगे आपको। उसके बाद 3x जो है ये आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको मैं फील्ड बताऊंगा कि आप इसको कैड को आगे किस तरफ लेके जा सकते हैं। 3D मॉडलिंग की तरफ लेके जा सकते हैं, उसके बाद आप डिजाइनिंग की तरफ जा सकते हैं, आप सिमुलेशन की तरफ जा सकते हैं। सिमुलेशन भी अभी आगे काफी टाइप्स की होती हैं, लाइक आप इसमें FE एनालिसिस कर सकते हैं और CFD एनालिसिस कर सकते हैं, फ्लो वगैरह के रिलेटेड जो है। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर जो है, किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने के दो मेथड्स हो सकते हैं, दो बेसिक मेथड्स। एक होता है नॉलेज बेस्ड लर्निंग और एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग। नॉलेज बेस्ड लर्निंग ये होती है कि आप टूल्स को सीखें, सॉफ्टवेयर के हैं उसको सीखें कि सॉफ्टवेयर किस लिए होता है, उसके टूल्स के हैं, उसको टूल्स को चलाना आपको आ रहा है। एक ये होता है। और दूसरा मेथड होता है प्रोडक्ट बेस्ड लर्निंग। आप बेसिक आइडिया ले लें उसका सॉफ्टवेयर का और उसके बाद आप क्या करें, कोई एक प्रोजेक्ट को उठा लें और उस प्रोजेक्ट में आप जो भी आपको मुश्किलात आती हैं, लाइक डिफिकल्टीज आती हैं, आप उसे इंटरनेट से सर्च करें या किसी एक्सपर्ट से रिव्यू करें। ये दूसरा मेथड होता है। हम इस कोर्स में क्या करेंगे, आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन देंगे। कॉम्बिनेशन में ये होगा कि नॉलेज बेस्ड लर्निंग जो है टूल्स के साथ जो आपकी लर्निंग है वो हम करवाएंगे आपको, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपकी इसमें हेल्प करेंगे। ये आपने खुद ही अपनी प्रैक्टिस करनी होती है।
नेक्स्ट हम चलते हैं अपने आज की सेशन की तरफ, सॉल्वरवर्क्स की तरफ। इस सॉल्वरवर्क्स सेशन में हम इस सेशन में ये होगा कि पूरी सेशन में, वर्कशॉप में, कि हम एब्सोल्यूट बिगिनर से लेके हम आपको इंटरमीडिएट तक लेके जाएंगे, जो मैं करूंगा खुद ही पर्सनली। इंटरमीडिएट तक मैं लेके जाऊंगा, बाकी हमारे जो इंटरनेशनल और नेशनल स्पीकर्स हैं वो आपको एक्सपर्ट्स और एडवांस जो टेक्निक्स हैं उसकी ट्रेनिंग देंगे। सबसे पहले मैं आज की सेशन में आपको इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा कि आपके जो अगर सिस्टम लेना है आपने तो आपके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। देन फिर इंटरफेस की तरफ जाएंगे और इसके 2D टूल्स की तरफ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉकिंग अबाउट द मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, मैं पर्सनली जो यूज कर रहा हूँ i5 4th जनरेशन है और 8 GB रैम। अगर आपने कैड मॉडलिंग करनी है या डिजाइनिंग करनी है तो उसके लिए आपको 8 GB रैम, एटलीस्ट 8 GB रैम मस्ट होनी चाहिए। और मेरे जो स्पेक्स हैं मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट ये रखें। मेरे वाले स्पेक्स के ऊपर आपका जो लेटेस्ट वर्जन है वो ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इंटरफेस ऑफ सॉल्वरवर्क्स। ओके, अगर आप सॉल्वरवर्क्स ओपन करें तो आपको सबसे टॉप के ऊपर की बार नजर आ रही होती है, जिसमें आप अपने सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें इसे कहते हैं मेन्यू बार, और इसके साथ ही आपको स्टैंडर्ड टूल बार नजर आ रही होती है। इसमें स्टैंडर्ड टूल्स होते हैं, लाइक आपने अगर प्रिंट करना है, न्यू फाइल ओपन करनी है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है या पुरानी फाइल ओपन करनी है, सेव करनी है, ये सारे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं आपको। आपको इन चीज़ों को याद रखने की जरूरत नहीं है। बताने का ये मकसद है कि आपको आइडिया हो जाए कि हमने किस चीज़ को कहाँ से एक्सेस करना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार होती है। अगर आपको कोई कमांड की नहीं पता कि कहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे सर्च करके आपको उसे एक्सेस कर सकते हैं। उससे नीचे मेन बार जो है हमारी कमांड बार से कहते हैं। जितने भी आपके 2D 3D सिमुलेशंस की और सरफेसिंग की जितनी भी एडवांस या बेसिक कमांड्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। लाइक आपने कोई टूल पिक करना है तो वो आप कमांड बार से पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड हमारे पास फीचर मैनेजर होता है। फीचर मैनेजर या डिजाइन ट्री से कहते हैं। ये केस सेंसिटिव एक ट्री होता है जिसमें आपको जो आपने टूल यूज कर रहे हैं या जो आप ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो उसके रिलेटिव आपको यहाँ पे सारे इसके ऑपरेशन आ जाते हैं। लेट्स सपोज आप कोई अगर आप ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहे तो आपको यहाँ पे फीचर मैनेजर या डिजाइन ट्री नजर आ रहा होता है। आपको सारी हायरार्की नजर आ रही होती है कि आपने कौन कौन से टूल्स यूज किए हैं, कौन कौन से कमांड्स यूज किए हैं और कौन कौन से स्केचेस या प्लेन जितनी भी आपकी चीजें हैं यहाँ पे शो हो रही होती हैं। उसके बाद आता है हमारा मेन ट्री। मेन जो है इसे कहते हैं ग्राफिक्स एरिया। ग्राफिक्स एरिया के अंदर जितने भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं ग्राफिक्स एरिया के अंदर होता है। ग्राफिक्स एरिया की टॉप के ऊपर देखें तो हमारे पास एक हेड ऑफ व्यू टूल बार होती है। जो बाकी टूल्स ये अंदर भी अवेलेबल होते हैं लेकिन हम यहाँ से इजी एक्सेस के लिए यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आप यहाँ से इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ऑन द राइट वी हैव टास्क पैनल। टास्क पैनल में आपको जो एडवांस फीचर्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। लाइक रेंडरिंग अगर आपने करनी है तो उसकी अपीयरेंसेस वगैरह जो मटेरियल्स हैं वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपने ड्राइंग्स वगैरह करनी है तो यहाँ पे हो जाते हैं। ये चीज़ें आप अगर आपके लिए एक्स्ट्रा ज़्यादा हो रही हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इनका गो थ्रू रखें कि आप इन फीचर में होता क्या है। नेक्स्ट हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें खुद याद हो जाएंगी। अभी चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ और हम इसकी बेसिक को स्टडी करते हैं। मैं करंटली यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सॉल्वरवर्क्स 2019। और जब आप किसी भी सॉल्वरवर्क्स को ओपन करेंगे, लाइक 2016 से अगर आपका नीचे वाला है 2016 और 2016 से नीचे वाले अगर कोई वर्जन है तो उसके ऊपर आपको इस तरह का नहीं नजर आता। लाइक इंटरफेस थोड़ा सा उसका चेंज होता है। उसमें सिर्फ मेन फीचर्स ये ऊपर आ रहे होते हैं। लेकिन कोई भी आप अगर सॉफ्टवेयर इसको सॉल्वरवर्क्स को जब ओपन करेंगे तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आ रहे होंगे ऊपर, पार्ट, असेंबली और ड्राइंग। ये मेन फीचर्स हैं। पार्ट में क्या होगा कि अगर कोई कंपोनेंट बनाना है, एक सिंगल कंपोनेंट, तो आप इसमें पार्ट के अंदर बना सकते हैं। असेंबली में क्या होगा कि आपने जो कंपोनेंट्स बनाए हैं उसको असेंबल करके एक मशीनरी या कोई मशीन जो आप बना सकते हैं। देन आता है हमारे पास ड्राइंग। ड्राइंग के अंदर ये होता है कि आप जो भी आपका पार्ट है या असेंबली है तो उसके आप डायमेंशंस को दे सकते हैं या प्रिंट के लिए आप उसको क्या कहते हैं ड्राइंग उसकी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे पार्ट्स की तरफ। सॉलिडवर्क्स ओपन करने के बाद आपने पार्ट पे क्लिक करना है। जब आप ओपन करते हैं सॉलिडवर्क्स का पार्ट का ऑप्शन तो आपका ये मेन्यू शो हो रहा होगा।
ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये फीचर मैनेजर, सॉरी, ये डिजाइन ट्री है, ये ऊपर कमांड मैनेजर है, सारे उसके जो टूल्स हैं। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो सेकंड बार है यहाँ पे, सेकंड कमांड है, इसे कहते हैं स्केच कमांड। जितने भी आपके 2D के ऑपरेशंस हैं, एडवांस या सिंपल ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। उसके बाद आपने आज की हम जो क्लास है इसमें हम स्केच के अंदर रहेंगे, 2D के अंदर। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में फीचर्स और उसके बाद स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हमने कोई चीज ड्रा करनी हो तो सॉल्वरवर्क्स के इंटरफेस के अंदर आपने कोई भी चीज अगर ड्रा करनी है तो उसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप किसी स्ट्रेट फेस के ऊपर करें या तो आप किसी प्लेन के ऊपर कर सकते हैं। जब हमारे पास कोई अगर चीज नहीं होती तो हम क्या करते हैं, किसी ना किसी प्लेन के ऊपर ड्रा करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये हमारे पास 3 प्लेन है 3D के अंदर जो प्लेन्स होते हैं, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे, देन आप स्केच के अंदर जाके स्टार्ट अ न्यू स्केच करेंगे। अभी आपने अगर स्टार्ट किया है, अभी आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास क्या कहते हैं, इसका स्केच जो है स्टार्ट हो जाएगा। स्केच स्टार्ट करने के लिए आपके पास ये ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं कि आपने अभी ड्रा क्या चीज करनी है। ड्रा करने के लिए हमारे पास लाइंस हैं। लाइंस जैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि लाइन क्या होती है, इसके 2 पॉइंट्स लेने हैं। ये देखें, यहाँ पे आपको इसकी कमांड की साथ में एक्सेस आ रही है कि आपने अभी करना क्या है। लाइन मैंने सेलेक्ट की हुई है तो कह रहे हैं मुझे स्टार्ट और इसका एंडिंग पॉइंट बताएं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये इसका स्टार्ट पॉइंट है और दूसरा जहाँ पे मैंने देना है इसको, ये एंडिंग पॉइंट दे दूंगा मैं इसका। एक और चीज मेरे कर्सर के साथ आपको छोटी सी नजर आ रही होगी, ब्लू येलो कलर के अंदर एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। ये इसे कंस्ट्रेंट को शो कर रही है कि आप अभी अगर जो लाइन लगा रहे हैं वो 180 डिग्रीज पे होगी या 0 डिग्री पे होगी, और ये होगी क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। मैं चाहता हूँ कि ये लाइक इतनी लेंथ की हो, मैं इसे क्लिक कर दूंगा। देन मेरे कह रहे हैं कि आप एक और लाइन क्रिएट कर सकते हैं, मैं दूसरी लाइन क्रिएट कर सकता हूँ जितनी आप चाहें। उसके अलावा लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लेके आता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये आती है रिलेशंस की लाइन। लाइक अगर मैं यहाँ पे अगर एक पॉइंट रखता हूँ, एक लाइन क्रिएट करता हूँ, तो उसका एंड पॉइंट जो है ओरिजिन के बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में होगा, और होगी क्या, वो हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरह आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करेंगे तो आपकी लाइन जो है यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। दोबारा करते हैं, अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये लाइन है, मैंने एक लाइन लगानी है। अभी मेरे पास जो कर्सर है इसको लेके जा रहा है कि आप और लाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहीं पे एग्जिट हो जाए, तो एग्जिट करने के लिए सिंपली आप इसको एस्केप प्रेस कर सकते हैं, एस्केप प्रेस कर सकते हैं, या तो फिर राइट क्लिक करके फ्लैग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो लाइन की कमांड है वो एग्जिट हो चुकी है। इसी तरह बाकी हमारे पास टूल्स हैं। सर्कल सर्कल जैसे होता है कि आपने सर्कल ड्रा करना है, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा राइट साइड के ऊपर, सॉरी लेफ्ट साइड के ऊपर, कि हमारे पास सर्कल क्या है, 2 पॉइंट सर्कल है। 2 पॉइंट सर्कल है, उसमें क्या होगा कि आप सेंटर पॉइंट देंगे इसका, देन दूसरा इसका एंड पॉइंट देना होता है, सेंटर पॉइंट और दूसरा एंड पॉइंट। इसी तरह हमारे पास सर्कल की और टाइप्स हैं। 3 पॉइंट सर्कल, कि आप इसके पैरामीटर की जो 3 पॉइंट हैं वो डिफाइन करते हैं तो आपका एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि एक पॉइंट हो जो इसके टच हो रहा हो, इसके साथ टच हो रहा हो, और इस पॉइंट के साथ टच हो रहा हो। तो इस तरह आप इसको 3 पॉइंट सर्कल ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल सिंपली आपकी अगर कोई रेक्टेंगल ड्रा करनी है तो रेक्टेंगल आप इससे ड्रा कर सकते हैं, लाइक स्टार्टिंग पॉइंट देन एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन एंडिंग पॉइंट। इसके अंदर भी रेक्टेंगल टूल के अंदर भी आप काफी टाइप्स हैं, ये आप खुद भी डिस्कवर कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे इसका प्रीव्यू नजर आ रहा होता है कि अगर आप कहाँ पे आपने क्लिक करना है, लेफ्ट में ये करता हूँ सेंटर पॉइंट, और देन इसका मैं एंड पॉइंट दूंगा। ये होगी दूसरी टाइप। इसी टाइप इसके ना पॉइंट टाइप्स हैं इसकी। नेक्स्ट चलते हैं आर्क की तरफ। आर्क के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने रखी हुई है ये सेंटर पॉइंट आर्क है। सेंटर पॉइंट आर्क में क्या होता है कि आप इसका सेंटर डिफाइन करते हैं, इसका सेकंड पॉइंट डिफाइन करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आर्क, और देन इसको आप एंडिंग पॉइंट इसका डिफाइन कर देते हैं। ये आपके पास एक आर्क डिफाइन हो जाती है। इसी तरह आपके पास 2 टाइप्स हैं, ये आप खुद डिस्कवर कर सकते हैं। मूविंग ऑन हमारे पास स्लॉट्स आती हैं। स्लॉट क्या होता है कि एक स्लॉट्स कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन को जिसका कुछ ना कुछ इसका रेडियस होता है।
तो आप इसे ड्रा करने के लिए सेलेक्ट करते हैं इसे स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, और फिर इसका हमने इसका रेडियस डिफाइन करना होता है, रेडियस कितना इसका रेडियस है। और इसी तरह हमारे पास स्लॉट के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स हैं, स्लॉट के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स हैं, और लेट्स सपोज हम जाते हैं 3 पॉइंट आर्क के स्लॉट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है स्लॉट। अगर आपने सर्कुलर स्लॉट लगानी है, लाइक लेट्स सपोज ये है ना, हमारे पास एक आर्क है, आर्क के अंदर आकर आपने स्लॉट लगानी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंपली आप एक पॉइंट डिफाइन करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आर्क एंड देन एंडिंग पॉइंट ऑफ आर्क, और फिर आप इसका लेट्स सपोज ये आर्क भी डिफाइन होगी। अभी क्या करना है, हमने इसको रेडियस डिफाइन कर देंगे। एक और मेन चीज कि अगर आपने इसको एक्सेस करना है, लाइक आप किसी एक चीज पे फोकस करना चाह रहे हैं, जूम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास ये आपके माउस के अंदर 3 पॉइंट जो माउस है उसके अंदर आपके पास जो कर्सर है, व्हील है, व्हील को ऊपर की तरफ अगर करें तो ये जूम आउट होगा, और अगर नीचे की तरफ इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास जूम इन हो जाएगा ये। और पैन करने के लिए पैन होता है कि लाइक एक ही विंडो के अंदर मैं इसको साइड पे करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप कंट्रोल होल्ड करते हैं, कंट्रोल और साथ में मिडल माउस बटन जो है इसको होल्ड करके इसको आप मूव कर सकते हैं। और जब हम 3D के अंदर जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम रोटेट वगैरह कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन किसे कहते हैं, एनी क्लोज ज्योमेट्री विद एटलीस्ट एनी क्लोज ज्योमेट्री विद मोर देन 3 साइड्स, इसका पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन की हमने क्या डिफाइन करनी होती है, इसकी कितनी साइड्स हों। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास 8 साइड वाली जो पॉलीगॉन है वो क्रिएट हो जाए, 7 साइड वाली। इसके लिए सेंटर पॉइंट डिफाइन करूंगा मैं, सेंटर पॉइंट डिफाइन करने के बाद इसका एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड देन एंड पॉइंट। इसी तरह टूल से एग्जिट करने के लिए सिंपली सिलेक्ट ऑप्शन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है डिजाइन के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होती है सप्लाइन। सप्लाइन कहते हैं एक पाथ जो कर्व पाथ जिसको लाइक कोई खास डायमेंशन ना हो। लेट्स से मैं एक पाथ चाहता हूँ, जैसे हमारे पास घरों के पाइप होते हैं, अगर आपने वो बनाना है तो उसके लिए जैसे ये टूल होता है, सिंपली आप इसके पॉइंट्स देते जाते हैं, ये आपको कर्व पाथ एक डिफाइन कर देता है। इसी तरह एग्जिट करने के लिए सिंपली एस्केप प्रेस करें। नेक्स्ट आता है हमारे पास एलिप्स। एलिप्स क्या होता है, एलिप्स में हमारे पास दो चीज होती है मेन, एक माइनर रेडियस होता है, एक मेजर रेडियस। इसको ड्रा करने के लिए आप क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट फर्स्ट क्लिक, इसका सेंटर पॉइंट डिफाइन होगा, देन आपने इसका मेजर रेडियस देना है। अभी यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा ये इसका मेजर रेडियस डिफाइन होगा, मेजर रेडियस एंड देन इसका माइनर रेडियस डिफाइन कर देना आपने। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिलेट। फिलेट कहते हैं कि आपके पास कोई भी एक शार्प एज है, लेट्स से मेरे पास ये एक शार्प एज है, इस शार्प एज को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे राउंड हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिलेट की कमांड होती है हमारे पास। फिलेट के लिए आप सिंपली यहाँ तो इसके एंड पॉइंट जो है उस पर क्लिक करते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ मेरे पास एक 0.5 इंच की एक फिलेट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसके पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ तो फिर दो जो मेटिंग लाइंस है इनके ऊपर क्लिक करूंगा, तो हमारे पास एक फिलेट आ जाएगी। देन मूविंग ऑन, हमारे पास इसी की फिलेट के अंदर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे पास चैम्फर का कमांड होती है। चैम्फर की कमांड के लिए आप लेट्स सपोज हमारे पास ये एक शार्प एज है, शार्प एज को मैं चाहता हूँ ये आगे से थोड़ा सा लाइक कट जाए आगे से, तो सिंपली यहाँ पे आके मैं पहले डिफाइन करूंगा इसका रेडियस, सॉरी डायमेंशन डिफाइन करूंगा कितना मुझे चैम्फर चाहिए, और सिंपली इसके दोनों जो पॉइंट्स है उसको सिलेक्ट कर दूंगा। चैम्फर के अंदर भी आपके पास मुख्तलिफ कमांड्स होती हैं, एंगल आप डिफाइन कर सकते हैं या डिस्टेंस बाय डिस्टेंस इसको डिफाइन कर सकते हैं।
उसके बाद आता है हमारे पास हमारे पास आती है टेक्स्ट रूल। टेक्स्ट रूल अगर आपने कोई इसमें अल्फाबेट्स लिखनी है या इंग्लिश में कुछ चीज़ लिखनी है, लेट्स सपोज इसका किसी भी प्लेट का नेम टैग जैसे होते हैं किसी मोटर का या किसी भी कंपोनेंट का, तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि लेट्स सपोज मैंने क्या करना है, मैं इस पर अपना नाम लिखना चाहता हूँ। मैंने टेक्स्ट डिफाइन किया और मैंने इसको डिफाइन करना है कि कहाँ पे आए मेरा नाम। मैं चाहता हूँ कि इस लाइन के ऊपर मेरा नाम लिखा जाए, तो क्या होगा, इस लाइन के ऊपर मेरा नाम आ जाएगा। उसको आप मुख्तलिफ आगे कैटेगरीज हैं कि आप इसका जो साइज है, साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, सारी इसमें फीचर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट टूल। पॉइंट सिंपली आप एक किसी भी पॉइंट एक ऐसा चीज होती है जिसका कोई रेडियस नहीं होता। अ सर्कल विदाउट रेडियस इज कॉल्ड पॉइंट। तो आप किसी भी अपने पूरे इंटरफेस के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। जब हम 3D में जाएंगे और 3D की एडवांस चीज स्टडी करेंगे तो तब आपको इसकी पॉइंट्स की वैल्यू जो है मैं डिफाइन करूंगा कि क्या इसकी वैल्यू होती है, क्यों हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये हो गए हमारे कोई भी स्केच या कोई भी इसको कोई भी ज्योमेट्री ड्रा करने के ये टूल्स हैं। उस जो हमारी जो ज्योमेट्री हमने ड्रा की है उसको अगर हमने मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हमारे पास जो टूल्स हैं वो इस कमांड में आते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास ट्रिम टूल। ट्रिम टूल के अंदर काफी ज्यादा फीचर्स हैं कि आपने कॉर्नर से कॉर्नर को ट्रिम करना है। ट्रिम होता ही है कि आप किसी भी ज्योमेट्री का बॉडी को डिलीट ना करें, लेकिन आप उसका कुछ पोर्शन जो है उसको डिलीट कर दें। ट्रिम के अंदर हमारे पास कॉर्नर टू कॉर्नर होता है, मुख्तलिफ इसके फीचर्स हैं जो, लेकिन मोस्टली जो यूज होने वाला फीचर है वो है पावर ट्रिम। पावर ट्रिम क्या कहता है कि जिस फीचर को आपने, जिस ज्योमेट्री को, जिस लाइन को आपने रिमूव करना है, सिंपली उसके ऊपर लाइन ड्रा करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि सर्कल का ऊपर वाला जो पोर्शन एक काट हो रहा है, मैं क्या करूंगा, सिंपली इसके ऊपर लाइन ड्रा कर दूंगा। ये हो गया हमारे पास ट्रिम फीचर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वर्ट एंटिटीज। कन्वर्ट एंटिटीज होती हैं कि किसी भी दो पैरेलल फेसेस या किसी भी दो पैरेलल प्लेन्स के दरमियान अगर किसी एक प्लेन के ऊपर हमारी कोई ज्योमेट्री है तो मैं चाहता हूँ कि दूसरे के ऊपर आ जाए, तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसके ऊपर जाके एंटिटी को सिलेक्ट करते हैं और कन्वर्ट एंटिटीज कर देते हैं। तो होगा क्या, हमारे पास जो पहले एक प्लेन के ऊपर हमारी चीजें हैं वो दूसरी प्लेन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट आती है हमारे पास ऑफसेट एंटिटीज। ऑफसेट कहते हैं किसी भी एक चीज को अपने पॉइंट से थोड़ा लाइक मूव कर देना। लेट्स से मैं कहता हूँ ये जो सर्कल है, ये जो एलिप्स है मेरे पास, ये एलिप्स जो है इसको मैं मॉडिफाई करके इसकी बाउंड्री डिफाइन कर दूँ। तो क्या करेंगे, हम ऑफसेट के ऊपर जाएंगे, ऑफसेट डिस्टेंस हम इस पर डिफाइन करते हैं। ऑफसेट डिस्टेंस डिफाइन करने के बाद सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपको ये बाउंड्री नजर आ रही होगी। ये जो येलो लाइन है, येलो लाइन शो कर रही है कि आपके पास यहाँ पे इसकी बाउंड्री क्रिएट होगी। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर आए, अंदर बाउंड्री क्रिएट हो या बाहर की तरफ। उसके लिए आपको ये छोटा सा एक एरो नजर आ रहा है, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं या तो आप यहाँ से रिवर्स बाउंड्री की क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो येलो लाइन है, येलो लाइन अगर मैं सर्कल के एलिप्स के बाहर की तरफ क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, बाहर की तरफ हमारी बाउंड्री बन जाएगी। और अगर मैं इसी बाउंड्री को अंदर बनाना चाहता हूँ तो एलिप्स के अंदर क्लिक करेंगे तो ये हमारी इसकी बाउंड्री हो जाएगी, लाइक अंदर की तरफ एक ऑफसेट बन जाएगा। उसके बाद आती है हमारे पास मिरर टूल्स। मिरर एंट्रीज होती हैं कि लेट्स से मैं चाहता हूँ ये जो ये एंटिटीज हैं, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये वाली हमारी जो सर्कुलर जो स्लॉट है और ये रेक्टेंगल जो है ये मेरी इस लाइन के अबाउट मिरर हो जाए, लाइक जितना ये फासला है इसी फासले के साथ ये इस तरफ आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मिरर के ऊपर जाऊंगा। मिरर के ऊपर मुझे पूछ रहा है कि पहले आप एंटिटीज मिरर, किन एंटिटीज को आप मिरर करना चाहते हैं। मैं सिलेक्ट करता हूँ, स्लॉट में सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ ये रेक्टेंगल जो है रेक्टेंगल मिरर हो जाए। और उसके बाद आता है हमारे पास मिरर अबाउट, किस चीज के अबाउट आप मिरर करना चाहते हैं। 2D के अंदर आप अगर मिरर करना चाहते हैं तो आपके पास लाइन होती है कि इस लाइन के अबाउट मुझे मिरर कर दे। और मिरर करते हैं अगर तो हमारे पास ये प्रीव्यू इसका शो हो रहा है कि अगर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ तो हमारे पास इस तरह मिरर हो जाएंगी लाइन। और इसी तरह हमारे पास ये ऑप्शन है यहाँ पे कि अगर कॉपी करना चाहते हैं आप, या इसी बॉडी को आप उस तरफ लेके जाना चाहते हैं
अगर मैं इसे अनचेक करता हूँ तो ये वाली बॉडी डिलीट हो जाएगी और इस तरफ आ जाएंगी। लेट्स से मैं कहता हूँ कॉपी करके मुझे दूसरी तरफ भी चाहिए, इस तरह आप इसको कॉपी की कमांड यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पैटर्न की कमांड। पैटर्न होता है, जैसे मैं एक सर्कल लेता हूँ और लेट्स से ये सर्कल जो है एक होल है और मैं चाहता हूँ ये होल जो है इस तरफ लाइक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में इसको कॉपी हो जाए एक खास डिस्टेंस के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, लीनियर पैटर्न की तरफ चलाता हूँ। लीनियर पैटर्न में सिलेक्ट करता हूँ। इसमें हम सबसे पहले एंटिटीज पैटर्न में जाते हैं। एंटिटीज पैटर्न में जाके आप जिस एंटिटी को आपने पैटर्न करना है उसको सिलेक्ट करते हैं। देन आपको ये शो हो रहा होगा कि अभी जो प्रीवियसली लाइक बाय डिफॉल्ट ये 0.1 इंच के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल में मिरर पैटर्न होती जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि ये हमारी एंट्रीज 1 इंच के गैप के ऊपर और हमारे पास ये लेट्स से मुझे 10 एंट्रीज चाहिए। 2 इंच के गैप के ऊपर हमें 10 एंट्रीज चाहिए। तो क्या होगा, ये एंट्रीज पैटर्न हो जाएंगी। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे पास ये वाली एंटिटीज जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी आ जाए तो सिंपली यहाँ पे जाके इसके नंबर ऑफ एंटिटीज को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास वर्टिकल में भी आ जाएंगे। लेट्स से जैसे हमने हॉरिजॉन्टल में किया इसी तरह हम वर्टिकल में जाएं तो वर्टिकल के अंदर आप जाके इसको 2 पे लाइक 2 इंचेस सेलेक्ट करते हैं और इसी तरह आप नंबर ऑफ एंटिटीज सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये नंबर ऑफ एंटिटी पैटर्न होती रहेंगी। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। आपने पैटर्न करनी है लीनियर में लाइक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पोजीशन में अगर आपने इसको पैटर्न करना है तो सिंपली आप लीनियर स्केच पैटर्न में जाते हैं। एंटिटीज पैटर्न में जाके एंटिटीज सेलेक्ट करते हैं। पैटर्न का जो डिस्टेंस है वो सिलेक्ट करते हैं, डिफाइन करते हैं कितना डिस्टेंस है और नंबर ऑफ एंटिटीज सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ 5 इस एक्सिस में और इसी तरह 5 दूसरे एक्सिस में विद अ गैप ऑफ 2 इंचेस। तो हमारे पास ये एंटिटीज डिफाइन हो जाती हैं। इसके अंदर एक एडवांस फीचर है कि अगर आप एंटिटीज को स्किप करना चाहते हैं, अभी तो हमारे पास ये एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न मीन्स कि एक एंटिटी जो है हमारे पास पूरे एरिया के अंदर वो डिवाइड हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें से कुछ एंटिटी जो है वो रिमूव हो जाए, इसमें सेलेक्ट करते हैं इंस्टेंसेस टू स्किप और इसके ऊपर जाके जिसको आपने रिमूव करना है उसको आप सेलेक्ट करते जाएंगे तो हमारे पास ये एंट्रीज में वो स्किप होती जाएंगी। इसी तरह हमारे पास अगर मैंने ये लीनियर में करना हो तो हमारे पास लीनियर स्केच पैटर्न है। अगर हमने ये पैटर्न जो है मैं सर्कल में चाहता हूँ, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि एक सर्कल है हमारे पास और इस पॉइंट के अबाउट मुझे सर्कुलर पैटर्न दे देंगे। सर्कुलर पैटर्न लाइक कि इस पॉइंट के अबाउट मेरे सर्कमफ्रेंस के ऊपर इसी तरह के पैटर्न आ जाए। सर्कुलर स्केच पैटर्न में जाएंगे। ऑलरेडी जो है ये बाय डिफॉल्ट ये आपका जो कर्सर होता है, मेन पॉइंट जो कर्सर है, मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ कि कर्सर होता क्या है हमारा ऑरिजिन जो है ऑरिजिन को ट्रैक कर रहा होता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा ये कर्सर हो, ये पॉइंट हो जाए। ये पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और इसी तरह जैसे हमने लीनियर पैटर्न में किया था एंटिटीज पैटर्न सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास एंटिटीज जो एंटिटीज को करना है वो हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी है। लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे 6 एंटिटीज चाहिए। 6 एंटिटीज 6 नंबर ऑफ एंटिटीज यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। सेम इसी तरह हमारे पास इंस्टेंसेस टू स्किप है कि आप किसी को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सिंपल सर्कुलर स्केच पैटर्न। नेक्स्ट है हमारे पास मूव एंटिटीज। मूव एंटिटीज क्या होता है कि अगर आपने किसी भी एंटिटी को एक या एक से ज्यादा एंटिटीज को अगर आपने मूव करना है तो आप इसको मूव कर सकते हैं। लाइक इस पॉइंट से लेके मैं जहाँ भी लेके जाना हो इसको मूव कर सकते हैं। इसी तरह एक और चीज इसमें सॉलिड के अंदर कि आप इसमें जो भी चीज बनाते हैं वो आपकी नॉन डिस्ट्रक्टिव होती है कि आप किसी भी टाइम आके इसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि इसका जो रेडियस है सर्कल का रेडियस जो है ये छोटा कम कर दूं मैं, और ये जो मेन इसकी एंटिटी है वो बाकी एंटिटीज के साथ पेरेंट होती हैं। पेरेंट मीन कि एक मैं अगर चेंज करूंगा तो बाकी सारी एंटिटीज जो चेंज होती रहेंगी। लेट्स से मैं इसका रेडियस चेंज करता हूँ तो बाकी सारी जो एंटिटीज हैं उनका रेडियस भी खुद ब खुद चेंज होता जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि हमारी जो एंटिटीज हैं ये ऑरिजिन से दूर दूर हो जाए तो क्या करूंगा, इसको सिंपली पिक करके दूर लेके जाऊंगा तो बाकी सारी एंटिटीज जो हैं इसको फॉलो करेंगे।
और ये होगी हमारी कुछ बेसिक कमांड्स। देन हम आते हैं इसको डायमेंशन की तरफ। लाइक आपने अगर ये सर्कल है, इस सर्कल को आपने किस रेडियस का दिया हुआ है, किस रेडियस या किस डायमीटर का है। हर एक जो एंटिटी है आपको उसका पता होना चाहिए कि आप उसको डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीजें हैं। मैं आपको बताऊंगा और आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रह जाएंगी। लेट्स से हम एक नए सर्कल नए स्केच पे जाते हैं। मैंने ये जो स्केच है ऐसे सही पहले, और मैं चाहता हूँ कि ये स्केच से मैं एग्जिट हो जाऊँ। तो एग्जिट करने के लिए आपके पास क्या कमांड है, या तो आप यहाँ से जाके एग्जिट स्केच कर सकते हैं, या तो यहाँ पे आप एग्जिट स्केच सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक नया स्केच का स्टार्ट करूँ। अगर आपने इसे मॉडिफाई करना है तो सिंपली यहाँ पे जाके एडिट स्केच कर सकते हैं। और लेट्स से मैं इसे कहता हूँ मैं हाइड करूँ, राइट क्लिक करके इसके फीचर में से हाइड का सेलेक्ट कर देंगे। इसी तरह हम दोबारा एक स्केच स्टार्ट करते हैं। पहले हमने फ्रंट प्लेन के ऊपर किया था, अभी राइट प्लेन के ऊपर स्टार्ट करते हैं। राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास स्केच का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर देंगे। अभी जो है हमारे पास ये फ्रंट फेसिंग नहीं है। अगर मैं इसको अनेबल करूँ, हमारे पास ये राइट प्लेन, ये वाला राइट प्लेन है जो छोटी सी आपको लाइन नजर आ रही है। अगर इसके ऊपर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, हमारा स्टार्ट हो चुका है स्केच, लेकिन अगर इसको मैं फ्रंट फेसिंग करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप ऊपर जाके व्यू ओरिएंटेशन में जाके सिंपली नॉर्मल टू कर देंगे। अभी हमारे पास राइट प्लेन सेलेक्ट हो चुका है। इसकी बेटर विजुअलाइजेशन के लिए जैसे हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड राइट एंड जी एक्सिस। इसी तरह हमारे पास फ्रंट प्लेन, राइट प्लेन और टॉप प्लेन होते हैं। बेटर इलस्ट्रेशन आपको 3D से हो जाएगी। जैसे ये हमारे पास फ्रंट प्लेन है, राइट प्लेन है एंड टॉप प्लेन है। आप किसी के ऊपर भी अगर स्केच स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। करंटली हम राइट प्लेन के ऊपर हैं, सिंपली यहाँ से जाके इसको फ्रंट फेसिंग कर देंगे। मैं दोबारा इसको बाकी जो प्लेन है इनको हाइड कर देता हूँ। ओके, अभी हमने लेट्स सपोज हमने एक सर्कल ड्रा करना है। आपको अभी ये चीजें बताऊंगा कि किस चीज के साथ आप इसको फुली डिफाइन कर सकते हैं, कि आप इसको पता हो कि ये सर्कल जो है इसी फिक्स, लाइक किसी भी चीज को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। और फिक्स करने के लिए हमारे पास क्या होता है, लेट्स सपोज एक सर्कल है। सर्कल का मैंने अगर बताना है कि क्या क्या चीजें हैं इसकी सर्कल, लाइक डायमीटर क्या है और कहाँ पे पड़ा हुआ है। हमारे पास 2 चीजें होती हैं कि हर एक चीज की हम इसकी डायमेंशन बता दें। डायमेंशन होती हैं कि आपको लाइक इसका रेडियस जो है वो डिफाइन कर दें, और एक इसका जो हमारा पोजीशन है वो डिफाइन कर दें। जैसे आपने लाइक होती है सिंपल कमांड होती है कि ऑरिजिन के ऊपर, ऑरिजिन हमारा होता है एक फिक्स पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिसका सॉफ्टवेयर को पता है कि ये हमारा 0 पॉइंट है। तो हमने क्या करना होता है, हर एक चीज को हमने ऑरिजिन के साथ रिलेट करनी होती है कि ऑरिजिन तो हमारा फिक्स है और ये सर्कल जो है हमारा ऑरिजिन से कितने दूर, कितने फासले के ऊपर है। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल ऑरिजिन के ऊपर हो, तो ऑरिजिन के ऊपर मैं लेके आऊंगा और हमारे पास ये साथ में एक छोटा सा येलो बॉक्स के अंदर एक एंटिटी शो हो रही है। इसका मतलब होता है कोइंसिडेंट का रिलेशन। लाइक जो ऑरिजिन है इसका, सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है और साथ में ऑरिजिन है, ये आपस में कोइंसिडेंट हो जाएंगे। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, अभी हमारे पास ये ग्रीन हो गया हुआ है, ये जो पॉइंट है वो ग्रीन हो चुका है। ग्रीन पॉइंट मीन्स कि हमारा जो ऑरिजिन है अभी फिक्स है। अब मैं इसको उठा के अगर मूव करूं तो हमारे पास मूव नहीं होगा। आपको ये शो हो रहा होगा, इसमें कह रहा है कि कांट ड्रैग दिस आइटम इज फिक्स्ड। लेकिन अभी जो है जो जो हमारी चीजें फिक्स होती जाएंगी वो ब्लैक में शो होंगी, जो हमारी चीजें फिक्स नहीं है वो हमारे पास ब्लू में शो हो रही होंगी। अभी आप देख रहे हैं कि इसका जो ऑरिजिन है वो ब्लैक हो चुका है, लेकिन जो इसका जो बाउंड्री है वो भी फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है, इसका मतलब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ अभी भी। इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मार्ट डायमेंशन में जाते हैं। डायमेंशन में जाके इसको सिंपली रेडियस डिफाइन कर दे, सिंपली इसका डायमीटर डिफाइन कर देते हैं। आप इसका डायमीटर डिफाइन कर सकते हैं या इसका ये डायमीटर है इसका। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल जो है ये 10 इंचेस का हो जाए। हम सिंपली 10 इंचेस टाइप करेंगे और ये हमारा फुली डिफाइंड हो चुका है। आपको आपकी जो ज्योमेट्री है, जो भी आप जिसमें सॉलिडवर्क्स में चीज ड्रा करते हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको फुली डिफाइन रखें। फुली डिफाइन होने का ये मतलब है कि वो चीजें बाकी चीजों के साथ इन्फ्लुएंस नहीं होगी। बाकी चीजें जो भी होती रहें, चेंज होती रहें, वो चेंज नहीं होगी अनलेस आप खुद ही उसे चेंज करें। किसी भी ज्योमेट्री का आपको जो स्टेटस है, लाइक ये फुल डिफाइंड है या नहीं है, तो आपको ये राइट बॉटम साइड के ऊपर शो हो रहा होता है। फुल डिफाइंड मीन्स कि हमारी जो एंटिटी है, जो हमने चीज ड्रा की है,
वो हमारी फुली डिफाइंड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके सॉल्वरवर्क्स के अंदर जो भी चीज़ आप ड्रा करते हैं या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो एडिटेबल होते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपली मैं चाहता हूँ कि 10 इंच का नहीं मुझे चाहिए, मुझे 5 इंच का चाहिए। सिंपली यहाँ पे जाके 5 इंच सेलेक्ट कर देंगे। एडिट करने के लिए सिंपली डबल क्लिक करें और एडिट हो जाएगा। इसी तरह मैं चाहता हूँ लाइन है, एक लाइन है, तो लाइन को डिफाइन करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट का ओरिजिन के साथ रिलेशन क्या है। मैं कहता हूँ कि इसका रिलेशन है कि इसके ऊपर ये पड़ा हुआ है। या तो आप ये कर सकते हैं कि इसको ओरिजिन के साथ फिक्स कर दें, ओरिजिन के साथ इसका कोई रिलेशन बना दें, या तो आप इसको किसी फिक्स एंटिटी के साथ इसका रिलेशन बना सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इसके सर्कल के साथ हो जाए। सर्कल के ऊपर आप लेके आते हैं तो सर्कल के ऊपर आपको 4 पॉइंट्स नजर आ रहे होते हैं। ये चारों पॉइंट्स जो है 90 डिग्रीज के ऊपर होते हैं सर्कमफ्रेंस के ऊपर। लेट्स से मैं चाहता हूँ सर्कल के इस पॉइंट के ऊपर हमारा ये जो पॉइंट है ये फिक्स हो जाए। अगर इसके ऊपर मैं लेके आऊंगा तो ये पॉइंट ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक मीन्स ये फुली डिफाइंड है। और उसके बाद क्या हुआ है, हमारे पास ये जो पॉइंट है ये फिक्स है। मैंने आपको बताया था कि लाइन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 चीजें चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट इसका फिक्स करना है और एक एंडिंग पॉइंट हमने इसका फिक्स करना है। और हमारे पास तीसरी चीज क्या है कि हमारी उसका एंगल क्या है। लेट्स से अभी ये हमारे पास आपको शो हो रहा होगा कि हमारे पास इसका एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है। हॉरिजॉन्टल मींस 0 डिग्री के ऊपर है या 180 डिग्री के ऊपर है। लेट्स से अगर आपके पास ये नहीं होती, आपके पास ऐसे होती है लाइन, तो लाइन इसका ये नहीं पता कि इसका जो सेंटर पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट वो तो फिक्स है, लेकिन एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है और किस डायमेंशन के ऊपर है और किस एंगल के ऊपर है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, सिंपली स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, स्मार्ट डायमेंशन में जाके इसके ऊपर क्लिक करना है, देन इसकी जो डायमेंशन है वो डिफाइन कर देंगे। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये जो डायमेंशन है, ये जो लाइन है 15 इंचेस की लेंथ हो जाए इसकी। इसी तरह मैं कहता हूँ कि ये जो लाइन है ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसका ये हॉरिजॉन्टल में लाइन हो जाए। तो सिंपली मैं इसके ऊपर लेके आऊंगा और ये लेट्स से ये इस तरह लाइन है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और साथ में हमारे पास ये रिलेशन शो हो रहे हैं। ये जो पहले 2 कमांड्स हैं ये रिलेशन की कमांड्स होती हैं। मैं चाहता हूँ कि ये लाइन जो है कि वह हॉरिजॉन्टल हो जाए। हॉरिजॉन्टल डिफाइन करेंगे तो अभी हमारे पास ये लाइन फुल डिफाइंड हो चुकी है। फुल डिफाइंड मीन्स ब्लैक कलर। देन आपके बाद मुझे स्टेटस में भी देख सकते हैं कि ये अभी लाइन फुली डिफाइंड है। इसके बाद हमारे पास आता है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल का भी इसी तरह है कि आपने जो 2 पॉइंट्स हैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन करना है। स्टार्टिंग पॉइंट किस पॉइंट के ऊपर है, लेट्स से मैं चाहता हूँ इस पॉइंट के ऊपर है ये, और इसी तरह इसकी हाइट, इसकी लेंथ विड्थ देनी होती है और इसकी हाइट देनी होती है। ये मैं कहता हूँ कि लेट्स से 10 इंचेस है और ये इसकी जो विड्थ है और सॉरी हाइट है ये 5 इंचेस है। ये इसकी जो ज्योमेट्री है फुल डिफाइन हो चुकी है। इसी तरह आप बाकी चीज़ों को भी डिमेंशन दे सकते हैं। और एक चीज़ इसमें रहेगी कि आप रिलेशन जो है, लेट्स से मैं ये लाइन है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट का ऑरिजिन के साथ ये रिलेशन हो कि दोनों आपस में वर्टिकल पोजीशन में हो जाएं। दोनों को सिलेक्ट करूंगा और रिलेशन में जाके हम इसको वर्टिकल कर देंगे। तो क्या होगा, ये पॉइंट जो है अभी ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन लेफ्ट राइट नहीं हो सकता क्योंकि ये अभी वर्टिकल रिलेशन में आ चुका है। ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ ऑरिजिन के साथ वर्टिकल रिलेशन में आ चुका है। देन इसी तरह आपने देखा कि इसका जो लाइन है, लाइन अभी हॉरिजॉन्टल रिलेशन में है। अगर मैं इसका रिलेशन डिलीट करता हूँ तो अभी ये पॉइंट जो है ये मूवेबल है, ये पॉइंट अभी मूवेबल हो चुका है। इसी तरह अगर आपने इसको किसी एंगल के ऊपर करनी हो तो एंगल के लिए आपको 2 लाइंस चाहिए। 2 लाइंस लेके आप दोनों लाइंस के दरमियान स्मार्ट डायमेंशन से इसका एंगल डिफाइन कर देंगे। लेट्स मैं चाहता हूँ कि ये लाइन जो है 35 डिग्रीज के एंगल के ऊपर हो जाए। ये थी कुछ इसकी कैट की बेसिक्स, सॉलिडवर्क्स की 2D कमांड्स। और इसमें एक चीज़ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपने काम करना है इंचेस में काम करना है, मिलीमीटर्स में काम करना है या आप मीटर्स में काम करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे जाके राइट बॉटम साइड से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे करंटली ये IPS में है। IPS मीन इंच, पाउंड और सेकंड में। आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में और मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो हमारे ऐसे ही सिस्टम में जो यूज होता है वो मिलीमीटर में यूज होता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। और
ये थी कुछ इसकी बेसिक्स। बाकी इसको कर्सर को मूव करने के लिए लाइक इसको रोटेट करने के लिए हमारे पास मिडिल मोस्ट बटन प्रेस करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं, किसी भी ओरिएंटेशन में इसको लेके जा सकते हैं। ये इसकी कुछ बेसिक कमांड थी, बाकी कुछ एडवांस कमांड्स हैं वो हम इंशाल्लाह लेक्चर में स्टडी करेंगे। Thank you so much, Ahmad Ijaz. Here is an important announcement for you guys. After all the workshops, there will be an assessment on the basis of which certificates will be given to those who will perform well. At the event closing, we'll be having a grand session in which we'll discuss about the future of SolidWorks. Now we'll be having a question answer session. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप प्रैक्टिस करने के बाद अगर बाद में करना चाहते हैं तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, जो आपने बताया सर्कल को लाइन के साथ फिक्स करना है, उसका दोबारा बता दें प्लीज। ये जो आपका ये लाइन है, इसको आपने फिक्स करना है इसकी सर्कल के साथ। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और इसका जो ओरिजिन है उसको सिलेक्ट करके आप इसकी कोई भी रिलेशन जो आप जो भी चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल रिलेशन में आ जाए, ये मूव होके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में आ जाए, तो हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करेंगे। वर्टिकल अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा। और एक और चीज़ है इसमें कि अगर मर्ज करना चाहते हैं, मर्ज मीन्स के दोनों जो पॉइंट है एक तरफ आ रहे हैं, तो अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो सिंपली ये यहाँ पे आ जाएगी लाइन। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Are there any questions? Yes, sir, I have a question. It's regarding the convert entities. Is it more like projecting the entities of one plane onto another? Yes, it is about projecting one engine from one plane to the other plane. The main requirement over here is both planes should be together. Sorry, normal to each other. Let's say I want the entities of this right plane to project it to another plane. Although it's an advanced feature, but let's say let's define it now. Hello. Now we have planes, and I want of this right plane to project it on first plane. So what we will do, let's go to this sketch, start a new sketch, and select the entities. You can select either from this plane and select convert entities. Now you can see you have entities on both new plane and on right plane. Right. So does it have to be normal to the initial plane, or it can be at an angle? Yeah, the main requirement is both planes should be parallel to each other. Otherwise, this command will not work. Okay, thank you.
So the The WhatsApp group is open for feedbacks and questions. Now, I would like to extend my sincerest gratitude to the speaker and audience for being here with us this afternoon and spending their precious time with us. Stay tuned for the further modules. Thank you. I think there's a question. Our speaker will be answering it. Hello. Hello. Yes, Kalawal. Yeah, I wanted to know how you created the continuous line at the axis of the planes that you created just before you started drawing the shapes. I'm sorry, On can the you repeat? XY plane, on your XY plane and your exit plane, you created some illustration line, more like a continuous line. How did you create them? Yeah, there's a command for that. That is called spline. I guess you are talking about that one. So just go to spline and draw the shape you want. It Oh, will no, no, create. no, not that one. I mean, you Yeah. created lines just in the mid plane. You have three planes toggled on. You have your front plane, the bottom plane, and the side plane. So those three Yeah. planes, you created illustration line, more like a symmetric line in between. So I wanted to know, how did you create those lines in between such that everything connected and everything is aligned? Are you talking about the origin? Yeah, yeah, yeah. You created lines on the origin of all the planes, and you constrained your shapes to those origin. Did you get my question? Okay, yeah. Okay, for that purpose, just go to start a sketch and then start a line and give it some constraint like coincident, vertical, and horizontal. I guess you are talking about the coincident constraints. Thank you. Okay. अच्छा सर, ये मैंने एक चीज पूछना था कि हम पैटर्न अलोंग स्प्लाइन कर सकते हैं क्या? Thank you so much, everyone, and have a blissful day. Allah Hafiz. Okay. Thank you. The remaining questions will be answered in the WhatsApp group, so please ask there. Thank you very much.